Okay. So let us start with gravitation. As you can see here. बताओ मुझे क्या समझ में आता है ग्रेविटेशन से आप लोगों को? What do you understand by gravitation? The force which keep us, the force Grounded. which keep the oxygen covered by atmosphere, which pulls down the oxygen in atmosphere. Oh, that was really interesting. So we have atmosphere surrounding our earth because there is something which is pulling the atmosphere, basically air, which consists of so many gases. तो वो एटमॉस्फेयर क्यों है अर्थ के आसपास? क्योंकि कुछ है जो उसको पुल कर रहा है, वहां पे मेंटेन कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन. वेरी गुड. और कुछ? तीर्थ, न्यासा, any idea what is gravitation? Okay. तो पहले देखते हैं कि ये ग्रेविटेशन डिस्कवर कैसे हुआ. कौन थे ग्रेविटेशन को डिस्कवर करने वाले? न्यूटन. यस, करेक्टली सेड न्यासा. कैन यू बी अ बिट लाउडर? आइजैक न्यूटन. Isaac Newton discovered gravitation. So I am sure that all of you must be very grateful to him. Are you? Are you grateful to him? Yes, ma'am. Nyasa is showing some kind of reaction that I'm not able to share. Anyways, so gravitation हमको कैसे पता चला? आइजैक न्यूटन ने बताया. आइजैक न्यूटन को कैसे पता चला? तो कुछ फिनोमिनन थे जो वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे थे. सारी बड़ी डिस्कवरीज कैसे हुई हैं? ऑब्जर्वेशन से हुई हैं. So this is one thing that you should, one skill I should say that you should always develop in yourself. तो देखते हैं क्या क्या कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी. तो एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर हम कोई भी चीज ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अ हाइट तो वो सीधा नीचे आती है. ओके, क्योंकि अर्थ हैज गॉट ग्रेविटी. अर्थ इज पुल्ड, नॉट अर्थ इज पुल्ड, सॉरी, अर्थ पुल्स एवरीथिंग ड्यू टू ग्रेविटी. सेम चीज मून पे भी पॉसिबल है क्या? No, ma'am. इट इज नॉट. Partially, yes. पार्शियली यस, क्योंकि हाँ वहां पे ग्रेविटी तो है, बट वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ओके. कुछ मूवीज देखे होंगे आपने स्पेस वाले, ग्रेविटी, या तो कुछ वीडियोस देखे होंगे या तो देख लेना. तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहां पे कैसा होता है? चलो एक वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा चैप्टर में. The sky is falling! Get a grip. The sky isn't falling. It's getting sucked into outer space. And so are all the oceans, and the trees, and cars, and roads, and bridges, and the Earth's core, and you. So get a grip and hold on tight. Hang on, kid! You're in for a wild ride. This is What If. And here's what would happen if we lost gravity for 5 seconds. Unless you're an astronaut, you probably don't spend a lot of time thinking about gravity. We all take gravity for granted, and it would be hard not to. Aside from a tiny sliver of the world's population, most humans don't know a life without gravity. From the universe to our solar system to each planet, all the way down to our own bodies, gravity holds everything together. But since we tend to see gravity as a given, it's hard to imagine just how helpless we would be without it. Until it's actually gone. Gravity is an attractive force between any two masses. The greater the mass, the greater the gravity. The greater the gravity, the stronger the pull. Gravity is the reason why Earth rotates around the sun, why we experience high and low tide, and why we can walk on this planet without floating away. Most importantly, though, gravity secures our atmosphere, holding in the air we need to breathe. In fact, there are a lot of things we can thank gravity for.
So many, though, that if we tried to list them all here, we'd probably end up with a video longer than Titanic. So, just to give you an idea of how important gravity is in a really, really short amount of time, we're going to take it away from you. But not for too long. Just 5 seconds. Are you ready? With the world still spinning at its usual 1,600 km/h speed, everything that isn't secured firmly to the ground would go flying. Cars, boats, trains, planes. Well, obviously, but not like they normally do. More like this. The Earth spins faster along the equator, so the impact of zero gravity would be felt hardest there. At the equator, you could experience winds almost 6 times stronger than the ones produced by Hurricane Katrina. That means that in just 5 seconds, you could be blown as far as 2.3 kilometers in any direction. And not just you. There will be plenty of people, objects, and animals to look out for. Not to mention trees, soil, and mid-air floods from the world's ponds, lakes, rivers, and oceans. At the same time, the gases in the atmosphere would drift out into space. Not only are we now losing huge amounts of oxygen, but the sudden and sharp drop in air pressure would instantly shatter everyone's inner ears. And then there's the planet itself, which is literally held together by gravity. Without gravity, the pressure of the Earth's inner core would cause the planet to expand. It's not like 5 seconds without gravity would cause the world to explode, but even a 5-second expansion of the Earth's inner core would cause some major earthquakes and trigger huge volcanic eruptions. Add one more item to your list of dangerous things flying through the sky: lava. Out in space, the planets in our solar system that normally orbit the sun would instead start drifting away from it. Earth would follow its neighbors at a speed of 30 kilometers per second. In just 5 seconds, it would have traveled 150 kilometers. That's not far enough for our planet to be out of the habitable zone, but how habitable would Earth be after 5 deadly seconds without gravity? When gravity was restored, you'd hit the ground hard. If the impact didn't kill you, or if you weren't crushed by a heavy object, you would still be severely injured. My back. Oh, my back. Hopefully, you'd catch your breath in time, with gravity pulling oxygen back down to Earth and bringing the atmosphere back around the planet. But there would still be earthquakes and volcanic eruptions as the Earth's core becomes compressed again. And there would still be massive flooding due to the significant displacement of the oceans. The number of casualties would be astronomical, not just from flying debris, lack of oxygen, or simultaneous natural disasters, but because in those 5 seconds without gravity, the Earth's crust literally opened up and swallowed several major cities. So, yeah, a lot can happen in just 5 seconds, and that just goes to show how essential gravity is to life on Earth and beyond. You may think you're special, and you most certainly are, but just remember that you're part of something bigger than you, and that's what keeps you grounded. But don't sink too low. Can you imagine how heavy you'd be if Earth's gravity doubled? Well, that's a story for another What If. Did you enjoy the clipping, children? Yes, ma'am. अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा स्कैरी क्या लगा? मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगेगा आपको? Collision between all the planets in the solar system. कोलिजन बिटवीन ऑल द प्लैनेट्स, जुपिटर इधर जा रहा होगा, मार्स उधर जा रहा होगा, अर्थ पता नहीं कहाँ जा रहा होगा. मुझे सबसे ज्यादा डर लगा वॉल्केनिक इरप्शन से, एंड सो सेज न्यासा. मतलब वो जो लावा ऐसे उड़ उड़ के आएगा ना, फिर यू डोंट नो, अ बॉल ऑफ फायर कमिंग टू यू एंड हिटिंग यू. के पास नहीं है कोई राइट? नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन तो कहीं भी हो सकता है, तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा स्कैरी हो जाएगा, है ना. और फिर क्या, जब जैसे ही वो ग्रेविटी वापस आई, जो धड़ाम से चीजें गिरना शुरू होंगी, पता नहीं आप कहाँ दबे मिलोगे. सो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू ग्रेविटी, एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू आइजैक न्यूटन ऑल्सो, है ना.
भले ही फिजिक्स की इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हो उनकी वजह से, पर अगर वो ग्रेविटी नहीं समझाते तो भी, खैर ग्रेविटी तो रहती, वो नहीं समझाते तो भी ग्रेविटी तो रहती, but you would not have understood it in such a good manner. So we should be all grateful to our scientists, and I hope कि आप लोग बड़े हो के और कुछ नया नया ढूंढोगे. I'm sure there may be so many other forces which are undiscovered, जो आप लोग डिस्कवर कर लेना. ठीक है, थोड़े 4-5 चैप्टर और बढ़ जाएंगे साइंस टेक्स्ट बुक में. बढ़ाने के कम करने? ध्रुव को बढ़ाने हैं. जितने The उतने slide ही says कि चलेंगे. ध्रुव को बढ़ाने हैं. जितने उतने ही चलेंगे. जितने उतने ही चलेंगे. No ma'am. Okay. After that video, now it would be more interesting to know what gravity is and how it functions. So when I say gravitation, the gravitation force, okay. When I say gravitation, gravitation is nothing but a force. तो ये force, gravitation force, okay, ये बार मुझे थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए. Wait. Yeah. So when I say gravitation, it is nothing but a force of attraction. Now this force of attraction is there between any two objects. Any two objects in the universe will experience gravitational force. शर्त सिर्फ एक ही है. क्या शर्त है? They should have some mass. ठीक है. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे और बताओ. If mass is more, तो क्या gravitational force will be more or it will be same? More. It will be more. More. Okay, एक एक्सपेरिमेंट था जो इस फैक्ट को कंफ्यूज कर रहा है. जब आएगा एक्सपेरिमेंट तब मैं बताऊंगी. So more the mass, more will be the gravitational pull, and that is what defines your weight. Okay, तो अगर मेरा weight ज्यादा है on earth, वो ऐसा इसलिए है because I am pulled with more force towards the center of gravity of the earth, and that is why I weigh more. But the same thing will not apply if I go to moon or if I go to Jupiter or another planet having different gravity. Okay, so what is gravitational force? It is the force of attraction. किसके बीच में होगा? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई मास है. ठीक है. अब ये ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या होता है? तो ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय अर्थ. कैसे पता चलेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको ड्रॉप करो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट विल फॉल डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो आप जितना भी फोर्स लगा के उसको ऊपर फेंकोगे, सपोज आई हैव अ बॉल, उसको मैंने ऊपर फेंका, इट विल गो टू अ सर्टेन हाइट, बट देन इट विल श्योरली कम डाउन. और यही हुआ था न्यूटन के साथ. क्या हुआ था उनके साथ? कहाँ बैठे हुए थे? Below an apple tree. So he was sitting below an apple tree, and many people wished that Newton sat below a coconut tree. Right? But he was sitting under an apple tree. बहुत सारे लोग उसके बहुत पहले, उसके बहुत बाद में भी एप्पल ट्री के पहले नीचे बैठे होंगे. But it was only he who thought कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या हवा में फ्लोट क्यों नहीं किया. So that is how he discovered gravity. So gravitation is attraction between the objects. I have repeated this many times, and it will attract anything and everything in the universe. इसीलिए Earth is attracting moon and sun is attracting all the planets. तो ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में फंक्शन कर रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है. अब ग्रेविटेशन के साथ साथ एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? सो सपोज इफ आई हैव समथिंग मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, कुछ है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी? देखो, वेलोसिटी मुझे बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? Vector. वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए Direction. दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड.
और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. सो एनीथिंग दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. देखो अभी इसका डायरेक्शन ये है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया. कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन? How do you find direction of something which is moving in circular path? You find it by drawing a tangent. सुना है आप लोगों ने ये टर्म? What is a tangent? Yes, ma'am. क्या होता है tangent? Tangent is a ray which intersects with a circle only at one single point. है ना? तो tangent एक ray है और जब भी हमको सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन फाइंड करना है हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ओके, अब मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट देयर इज अ फोर्स. जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक फोर्स है विच इज पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा? द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट इन अ सर्कुलर पाथ. इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करती हूं, तो अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो बिकॉज देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स, everything is attracted to the center of the earth. अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? तो चीजें कैसे मूव करती? इस डायरेक्शन में मूव करती, या तो इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में. इट वुड नॉट हैव मूव्ड इन अ सर्कुलर पाथ. समझ में आई आपको बात? ये सेम चीज हम समझा सकते हैं एक एग्जाम्पल से. अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग सारे कभी ना कभी जायंट व्हील पे बैठे हैं क्या? Yes, ma'am. तो जब जायंट व्हील में बैठे होते हैं आप, तो किस तरह का मोशन होता है आपका? Circular. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ, Yeah, राइट? ma'am. तो यू आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन यू आर सिटिंग इन अ जायंट व्हील. तो गिर जाते हैं क्या जब ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, जब नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं? डू यू फॉल डाउन? No, ma'am. You don't fall No. down because you are pulled towards the center. So that also is an example of centripetal force. इसी तरह से अगर आपने कभी मिक्सर ग्राइंडर में कुछ ग्राइंड किया होगा, किया है कभी? Have you ever done that? No, ma'am. आज एक काम करना, आज अब सर्दियां हो गई वरना मैं कोल्ड कॉफी बनाने के लिए बोलती है आपको. नेक्स्ट टाइम जब आपकी मम्मी इडली के लिए बैटर ग्राइंड कर रही होगी मिक्सी में, तो आप क्या करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना जार को. यू विल सी दैट द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर इन मिक्सर ग्राइंडर व्हाइल ग्राइंडिंग. सो दैट ऑल्सो इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे जैसे मिक्सर का मोटर घूमता है वैसे वैसे उसके ब्लेड्स घूमेंगे और सारी चीजें दे अपीयर टू फॉल इन द सेंटर. डू ऑब्जर्व दिस. तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स. एक ऐसा ही फोर्स होता है ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. बताइए कौन सा फोर्स है? Centrifugal force. वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैंने कहा ये ऑपोजिट है. क्यों कहा ऑपोजिट है? क्योंकि ये चीजों को बाहर की Pushes तरफ the object outside. वेरी गुड, इट विल पुश द ऑब्जेक्ट आउटसाइड. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होगा? ऐसा होगा. इट विल पुश द थिंग्स आउटसाइड इन अ सर्कुलर मोशन. आई एम नॉट श्योर, पर मेरे ख्याल से यही होता है वॉशिंग मशीन में. तो अगर आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हुए देखे हैं, things are pushed outside and because of that centrifugal force the dirt settles down and the clean clothes are obtained. Okay, so again coming back to now gravitation, let us see what happens in gravitation. That is universal law of gravitation. पहले statement समझ लेते हैं हम लोग, है ना? तो what is the statement saying? Let me take a pointer.
Okay. So what is universal law of gravitation? Universal इसलिए बोल रहे हैं because it is applicable anywhere, wherever you go in the universe. So it states that every object in the universe attracts every other object. तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्स होना चाहिए. सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ फोर्स. अब ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, कैसा है? सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. इट इज, देख रहे हैं यहाँ पे आप, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. अगर आप दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो दो मासेस होंगे, एक ऑब्जेक्ट 1 का, एक ऑब्जेक्ट 2 का. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. समझो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस था d. सो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब मैं लिखूंगी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दैट इज d स्क्वायर. सेंटेंस समझ में आया आपको? स्टेटमेंट समझ में आया लॉ का? बहुत इजी. Yes, ma'am. उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी है. इट जस्ट सेज दैट every object in the universe attracts every other object with a force. Which kind of force? Directly proportional to product of the masses, inversely proportional to square of the distance between them. सेम चीज मैथमेटिकली लिखेंगे. दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी. इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो m इंटू एम लिखेंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1 अपॉन d स्क्वायर लिखेंगे. दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो. व्हाट डू यू गेट? यू गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. अब अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अगर मुझे इसको फर्दर स्टडी करना है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई वांट इक्वल टू. तो इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा. सो व्हाट डू आई डू? इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैं इज इक्वल टू रख देती हूँ, पर उसके लिए मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. कौन सा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया मैंने यहाँ पे? कैपिटल जी. कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू भी दी हुई है और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. ओके, सो इफ आई वांट टू शिफ्ट दिस, ओके, नॉट पॉसिबल. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हम अपना इक्वेशन देख लेते हैं क्या हो गया. अब इक्वेशन हो गया है f इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है. अब अगर मुझे कैपिटल G की वैल्यू जाननी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा. पहले मैं डी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ. सो f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m. अब क्योंकि मुझे G की वैल्यू जाननी है, मैं M और M को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ. तो कैपिटल G की वैल्यू हो गई F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू M. ओके, अब अगर मुझे सारी वैल्यूज पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करूं जहां पे मैंने दो बॉडीज ली ऑफ नोन मासेस, उनके बीच का डिस्टेंस भी मैंने मेजर कर दिया और उस पे मैंने एक नोन फोर्स अप्लाई किया, जो फोर्स की वैल्यू मुझे पता है. तो मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आई कैन फाइंड आउट कैपिटल G. तो कैपिटल G की वैल्यू किसने फाइंड की थी? हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी. हु फाउंड आउट? इट वॉज हेनरी कैवेंडिश. और कितनी मिली उनको कैपिटल G की वैल्यू? कैन यू रीड इट फ्रॉम द स्क्रीन? प्लीज रीड द वैल्यू फ्रॉम द स्क्रीन.
Come on. What is the value? 6.673 It is into 10. yeah 6.673 into 10 raised to minus 11. Minus 11. ये minus 11 क्या दिखाता है? ये strong force है या weak force है? Weak force. It's a very weak force. 10 raised to 11 मतलब it is a very very weak force. और इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट के लिए पहले आपको फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा. फोर्स का यूनिट कितना है? न्यूटन. डिस्टेंस का यूनिट कितना है? मीटर स्क्वायर. हम सारे एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट लेंगे. और मास का यूनिट कितना होता है? केजी. तो 2 बार हमने केजी लिया तो ये हो गया केजी स्क्वायर. तो कैपिटल जी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड अपॉन केजी स्क्वायर. याद रखेंगे इसको.